अंबेडकर किया, तो अंबेडकर जी के नाम में जो अंबेडकर वर्ड है उनके गांव का एक प्रतीक है। अंबेडकर साहब बहुत बड़े शिक्षाविद, संविधान विशेषज्ञ, एक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, एक वकील, एक सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक प्रवर्तक या विद्वान पुरुष थे। उन्होंने भारतीय सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्रशासकीय व्यवस्था में अमूल्य योगदान दिया। उस समय की सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पर उनका विरोधाभास गांधी जी के विचारों के साथ हुआ। हिंदू धर्म की जो वर्ण व्यवस्था थी उस पर उसने कुछ नहीं किया। मरने से पहले महापरिनिर्वाण उनको प्राप्त हुआ। 1956 से पहले उन्होंने एक सामाजिक व्यवस्थाओं से, धार्मिक व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपने अंतिम वर्ष में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और उनके साथ साथ 11 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अपने जीवन के सबसे बड़े योगदान के रूप में, जिसे हम कहते हैं भारतीय संविधान का निर्माण करना, दुनिया के 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और हर देश की बेहतरीन नागरिक अधिकारों की, सिविल राइट्स का ड्राफ्टिंग हो, गवर्नमेंट का फ्रेमिंग का तरीका हो, या वहाँ की जुडिशियल व्यू की प्रणाली हो, सभी का अध्ययन किया और भारत के संविधान में उस समय का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा संविधान बना। Continue to bless us. Sun has gone to India. Music is a teaser. Those Yuganyant, Yug Purush, Bhim Rao, Ambedkar, Ambedkar, Ambedkar. A very good morning to one and all present over here. Today, I, Payal Arora, student of +2 Commerce. Today, I am going to deliver a speech on the famous books written by Dr. B.R. Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar is known as a world-class lawyer, Dalit political leader and chief architect in the Indian Constitution. He is the most sought-after writer of present era. Dr. Ambedkar has knowledge of 9 languages like Hindi, Pali, Sanskrit, English, French, German, Marathi, Persian, Gujarati, etc. Dr. Ambedkar's books are currently counted among most selling books in India. Some famous books written by Dr. B.R. Ambedkar. Number 1, The Untouchables, 1948. The description of the book is misunderstood. It is an agenda to defame Dr. B.R. Ambedkar and his book. Dr. B.R. Ambedkar didn't support any Aryans came from outside. He says in the book that all Brahmins, Kshatriya, Vasya and Shudra are the native people of the land and nobody came from outside. The second book, Riddles of Hinduism 2008. The Riddles in Hinduism by B.R. Ambedkar is a striking remark on the well-established tenets of Hinduism. This book talks the inconsistencies in Hinduism and yet full of internal inconsistencies. Each riddle he possesses a relatively simple answer. Third one, Pakistan or Partition of India 1945. This book is a treasure trove of knowledge. It shows the vision of Dr. Babasaheb Ambedkar and anti-participants of the problem or partition. The present generation of youth needs to read this book. It reveals a lot of intentionally hidden information. The fourth book is The Problem of Rupee, Its Origin and Its Solution 1923. It's a wonderful book to study and understand nature and norms of the economy in the entity with practical applicability for nation. Not only RBI, the brain of child Dr. B.R. Ambedkar as this book, but mentions him also thrown light on the great value of currency visualized and academic exercise. Last book, Buddha and Karl Marx 2010. In the book, B.R. Ambedkar suggests either a comparison or a contrast between two such personalities divided by such a lengthy span of time and occupied with different fields of thoughts. In short, to sound old, the Marx may easily laugh at it and may ridicule the very idea of treating Marx and Buddha.
Buddha are so ancient and Marx so modern. At last, a people and their religion must be judged by social standard based on social ethics. No other standard would have any meaning if religion is held necessary, good for well-being of the people. Thank you and have a glorious day ahead. और हमको मुड़ फिर दोबारा आवा मैं जो भी जून हटावा हो मेरा देश होवे पंजाब मेरा देश होवे पंजाब मेरा देश होवे पंजाब भावे दुनिया घुम लईए सोहणिया भावे दुनिया घुम लईए छड़िए जहान जदों हाय छड़िए जहान जदों मिट्टी वतना दी चुम लईए सोहणिया मिट्टी वतना दी चुम लईए सब किस्से अते कथावा मेरे देश दियां रचनावा फिर क्यों ना मैं ये चाहवा मेरा देश होवे पंजाब मेरा देश होवे पंजाब मेरा देश होवे पंजाब। तो ये मैंने पंजाब के लिए किया। सुप्रभात प्यारे बच्चों, सभी शिक्षक साथी बेटा बैठ जाएं। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गर्मी है ना? पीड़ा महसूस होती है, लेकिन उस पीड़ा को महसूस करके और उसमें बदलाव लाने वाले व्यक्तित्व, तो व्यक्ति को महामानव कहते हैं। और जो पीड़ा महसूस की बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के गरीब, शोषित और वंचितों के लिए, और उसमें सामाजिक, आर्थिक और समरसता का जो बदलाव दिया, ऐसे शोषित, वंचित और गरीबों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सअध्यय सत सत नमन करते हुए उनकी 130वीं जयंती पर, उनके जन्म दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। अभी जो हमारे राजीव कुमार स्वामी जी हैं, जब वो पास आए कि सर आपकी जगह बदल दें, मैंने कहा मेरी जगह बदलेंगे विद्यार्थियों कैसे? जो चीज़ आप महसूस कर रहे हैं वो मुझे भी महसूस होनी चाहिए। गर्मी है, लेकिन अगर आप बाबा साहेब के जीवन को पढ़ें, जानें, तो शायद ये गर्मी कुछ भी नहीं है। सोच करके देखिए, बारिश हो रही है, आप पूर्ण भीगे हुए हैं पूरे रूप से, और आप एक दीवार का सहारा ले लेते हैं, छत भी नहीं, दीवार का सहारा ले लेते हैं, और वो दीवार अछूत हो जाती है, वहां से खदेड़ दिया जाता है। कैसी मानसिक पीड़ा झेली होगी उस छोटे से 11 साल के बच्चे ने। जब आपके विद्यालय में आपके पानी पीने की व्यवस्था अलग हो, आपको कक्षा में प्रवेश ना दिया जाए, उसके बावजूद 64 मास्टर्स, 64 सब्जेक्ट्स में उन्होंने मास्टर्स किया था और 11 भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने कहा था, शिक्षा वो हथियार है
जो हर अंधकार को काटेगा, और शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धारेगा। उनका जीवन सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों या गरीबों के लिए कार्य किया, या सिर्फ एक, जैसे मोहित जी ने बताया कि सिर्फ दलितों के रूप में, नेता के रूप में जाना जाना वो सबसे बड़ा अज्ञान होगा हमारे लिए। ये राजनीति है जिसमें उनके व्यक्तित्व को गलत रूप से पेश किया गया। जिस व्यक्ति के अर्थशास्त्र पर भारत की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस व्यक्ति को एक समाज से बांधना बहुत गलत है। ये स्टूडेंट्स, मैं एक दिन ऐसे ही टीवी खोल के बैठा हुआ था, देख रहा था कुछ, वहां पे एक ऐड आई। आप लोगों ने एनडीटीवी देखते होंगे कई बार ना। एक उस पे पुण्य श्लोक अहिल्या बाई, कुछ ऐसा डेली शोक आता है, देवी अहिल्या बाई। तो उसमें जो देवी अहिल्या बाई है वो पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उस राज परिवार में उसको कहते हैं कि औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, औरतें घर का कार्य करेंगी। तब वो मां सरस्वती के सामने जाकर, तो छोटी सी बच्ची जिसकी शादी हो चुकी, 10 से 11 साल की बच्ची है, अहिल्या देवी बाई, वो मां सरस्वती के सामने जाकर कहती कि तुम देवी होकर के, विद्या की देवी होकर के, एक औरत होकर के तुम विद्या की देवी हो, और एक महिलाओं के लिए ही विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती, ये कैसा न्याय है? उसकी पीड़ा को समझ। और इसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो आज तक सबसे बड़ी, ये कहें कि भयंकर दुर्घटना थी। दुर्घटना नहीं कहेंगे, कुकृत्य कहेंगे इसको। ब्रिटिश शासकों के द्वारा किया गया जघन्य अपराध, जो हर एक भारतीय के दिलो दिमाग में अभी तक वो घाव करके बैठा हुआ है, जो कभी नहीं भरेगा। जिस समय भी हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सोचते हैं, शहीद भगत सिंह के बारे में सोचते हैं, शहीद उधम सिंह के बारे में सोचते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और देश भावना हमारे अंदर जागृत हो जाती है। इसी चीज़ को हमने मरने नहीं देना है। ये भावना, ये जज्बा जो देशभक्ति के लिए है, देश के लिए है, उसको बना करके रखना है। आज उन्हीं सभी अमर शहीदों को भी हम नमन करते हुए उन्हें याद करते हैं, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन सभी शहीदों को नमन। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो निहत्थे भारतीय शहीद हुए, उनको नमन। और हम इस चीज़ से सबक लेते हैं कि शासक कोई भी हो, कुकृत्य करेगा तो वो जाएगा ही जाएगा, वो उखाड़ फेंका जाएगा। और भारत के लोगों ने ये करके दिखाया है। पुनः आप सभी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उन सभी अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड पर दुख प्रकट करते हैं। अंत में सभी को जय भीम, जय हिंद, जय केवीएस।